Welcome to the 28th video on As You Like It by William Shakespeare. नाटक As You Like It, जिसके नाटककार विलियम शेक्सपियर हैं, पर बनी इस 28वीं वीडियो में आपका स्वागत है. In this video, we shall see Act 3, Scene 3, Part A. इस वीडियो में हम एक्ट 3 सीन 3 का पार्ट ए देखेंगे. शेक्सपियर मेंशंस सम अदर लेस रोमांटिक लवर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन एक्ट 3 सीन 3. Here we see till now the events that were going on were basically inclusive of the major characters. Now here Shakespeare gives us a look into the life of the minor characters. अभी तक हम नाटक में ये देख रहे थे कि जितने मुख्य पात्र हैं उन पर या उनके साथ घटनाक्रम जो घट रहा था उस पर आधारित घटनाएं चल रही थीं. अब शेक्सपियर हमें कुछ ऐसे पात्रों के बारे में बताते हैं जो मेजर कैरेक्टर से थोड़ा सा लोग हैं, उनकी उपस्थिति थोड़ी सी कम है. He brings forth characters like the poetic and philosophical touch and the touchstone and the Audrey. Now here he brings before us some important characters like touchstone comes into prominence, and then Audrey, who is his beloved. These two characters are brought to the forefront here. यहाँ पर touchstone, जो कि पहले भी कुछ एपिसोड्स में हमें दिखा है, वो touchstone देखने को मिलता है और साथ में उसकी प्रेयसी ऑड्रे वो देखने को मिलती है. Touchstone has courted and has finally won Audrey. She is Shakespeare's most dull-witted country lass. Now here we see that Touchstone has courted and finally won Audrey because it is a drama, and in this drama the whole activity of the lover trying to woo the beloved, it creates a lot of dramatic effect. So we have seen that Touchstone, he finally courts and wins over Audrey. यहाँ पर क्योंकि ये नाटक का मंचन हो रहा है तो टचस्टोन अपनी प्रेयसी को अपनी प्रेम का प्रमाण दे करके और ये समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कितना चाहता है, और अंततः वो ऑड्रे का दिल जीतने में सफल होता है. She is Shakespeare's most dull-witted country lass. Now the minor character of Audrey has been projected as a dull-witted country lass who is not that sharp, who is not that full of wit and wisdom, and she belongs to the countryside. So all her behavior, her mannerisms, they are a bit rustic. यहाँ पर ऑड्रे का जो पात्र गढ़ा गया है वो इस तरह से गढ़ा गया है कि वो शेक्सपियर की मुख्य पात्रों में जो महिला पात्र गढ़े जाते हैं वो बहुत शार्प, तीक्ष्ण बुद्धि वाले और बहुत ही विवेकपूर्ण स्त्रियां दिखाई जाती हैं. लेकिन यहाँ पर ऑड्रे का जो पात्र गढ़ा गया है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी इतनी तीक्ष्ण नहीं है और साथ में उसका ग्रामीण परिवेश है. अब क्योंकि ग्रामीण परिवेश है तो उसका सारा रंग ढंग, बोल चाल, रहन सहन वो सब के सब ग्रामीण दिखाया जाता है. बोथ ऑफ देम hastily rush to meet Sir Oliver Martext, the vicar of the neighboring village. Here in this episode we see that both of them, this Touchstone and Audrey, they rush to meet the vicar ओलिवर मार्टेस्ट. ये दोनों की दोनों मंच पर भाग करके जाते हैं और सर ओलिवर मार्टेस्ट नाम के जो विकार हैं, पादरी हैं, जो कि पास वाले गांव से आए हुए हैं,
उनका स्वागत करने के लिए ये दोनों जाते हैं. On seeing this pair, Jacques is amused. He feels that the pair is incongruous and a perfect mismatch for each other. Now here we see that Jacques, when he takes a look at this couple, Touchstone and Audrey, he is quite amused. He feels a bit entertained because the couple is incongruous. It is mismatched. They are not compatible with each other. So when Jacques sees what a mismatch of two lovers, so he finds it very amusing. Jacques जब ये इन दोनों को देखता है, प्रेमी और प्रेमिका टचस्टोन और ऑड्रे को, तो इन दोनों की जोड़ी को लेकर के उसके मन में ये प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कि इन दोनों का कोई तालमेल है ही नहीं, बड़ी बेमेल जोड़ी है. और इस बेमेल जोड़ी को देख करके, जोड़ी बेमेल है लेकिन फिर भी वो आपस में इतने एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, ऐसी स्थिति को देख करके जेकस को बहुत मजा आ रहा है. वो बहुत ही मनोरंजन ग्रहण कर रहा है इन दोनों की इस बेमेल जोड़ी को देखकर. From another side of the forest, Oliver Martext arrives. All the characters are confused over the presence of the other ones. Now, because this is a drama and it has to be enacted, so from the other side of the stage, Oliver Martext enters. क्योंकि ये नाटक है और इसका मंचन हो रहा है, तो एक तरफ टचस्टोन और ऑड्रे सर ओलिवर मार्टेक्स्ट का स्वागत करने के लिए आगे जा रहे हैं, दूसरी ओर से उनका आना दिखाया जाता है. All the characters are confused about the presence of the other ones, and all the characters, they are quite confused about the presence of the other characters. यहां अभी जितने पात्र इकट्ठे हुए हैं उसमें हर पात्र हर दूसरे पात्र को देख करके असमंजस में है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये दूसरा पात्र यहां पर क्यों आया है. क्योंकि टचस्टोन और ऑड्रे आए हैं, सर ओलिवर मार्टेक्स्ट उनके विकार हैं, वो एक विशेष योजना के तहत यहां पर आए हुए हैं. जेकस को लगता है कि मैं यहां पर आया हूं तो ये लोग क्यों आए हैं. इस तरह का एक कंफ्यूज्ड एटमॉस्फेयर यहां पर दिखाया गया है. दिस कंफ्यूजन एड्स अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक इफेक्ट टू द होल सीन. ये जो इनके आपस में अजीब से गुथे हुए हाव भाव हैं, ये सब मंच की दृष्टि से या नाटक के अंदर की नाटकीयता की दृष्टि से बहुत अच्छा नाटकीय पुट उत्पन्न कर रहे हैं. They discover that there is no one to give the bride away in marriage to Touchstone. So Jacques offers his services, but he recommends that they be married by a priest, as this fellow will but join you together as they join wainscot. Now, when Touchstone and Audrey are ready to marry each other, and the vicar, Sir Oliver Martext, has come here to marry them away. When the procedure is being planned, at that time they find that there is nobody to give the bride away to the bridegroom. Now, because somebody has to do this act, so Jacques is the only available option for this. So he says, all right, I will give this bride away to the bridegroom. The requirement here is not so much of a person like me as is the right priest who should be available here to perform this ceremony. यहां पर जब शादी की प्लानिंग हो रही है, पादरी ओलिवर मार्टेक्स्ट आए हुए हैं और टचस्टोन जो कि दूल्हा है और ऑड्रे जो कि दुल्हन है, ये भी यहां पर आए हुए हैं. उसी समय पर ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि दुल्हन को दूल्हे को सौंपेगा कौन.
अब ऐसी स्थिति में दुल्हन का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई नहीं है। जेकस एकमात्र विकल्प है। जेकस कहता है कि ठीक है, मैं दुल्हन को देने का काम या लड़की वाले प्रतिनिधित्व वाला काम मैं कर देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर हमें एक ऑप्शन बेटर चूज करना चाहिए। He recommends that he may be married by a priest, as this fellow will but join you together as they join wainscot. Now, Jacques, he says that it's fine to marry away the couple. It's fine for me to give the bride away, but the priest is not the right choice, because he will join the couple just as the building workers or the masons, they join the wainscot, that is the lower part of the wall, which is joined very roughly. So he says that this man will just work as if he is like doing away with the work. यहां पर जेकस एक सलाह देता है कि दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में सौंपने का काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके साथ एक बात और है कि यहां जो पादरी इस पूरे विवाह को संपन्न कर रहा है, वो पादरी बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। क्यों? कि उसके काम की क्वालिटी इतनी पुअर है, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर जब दीवार बनाता है तो नीचे के साइड जो दीवार का हिस्सा होता है उसको वो ऐड करता है, ज्वाइन करता है नीचे की पट्टी को ऊपर वाली दीवार से, तो वो उसको बहुत ही रफली ऐड कर देता है, उसमें कोई सफाई नहीं होती या कारीगरी नहीं होती है, यानी कि वो काम बिल्कुल चलते फिरते से पुअर क्वालिटी का किया जाता है। तो वो कहता है कि ये पादरी तो शादी का भी शादी को भी ऐसे संपन्न कराएगा जैसे कि एक अयोग्य मजदूर दीवार को बना रहा हो। टचस्टोन feels that an improper or inaccurate marriage would be beneficial for him, as he says in an aside, not being well married, it will be a good excuse for me hereafter to leave my wife. Now here, Touchstone, he says in an aside. In an aside means that he turns his back towards the stage and says as if he wants to say something secretly that is running through his head. यहां पर टचस्टोन बोलता है और अपना मुंह फेर के थोड़ा किनारे की तरफ जाकर के बोलता है, मानो वो ऑडियंस से छुपा करके कुछ कहना चाह रहा है या मुख्य पात्र जो स्टेज पर खड़े हैं उनसे छुपा करके कुछ कहना चाह रहा है। और वो क्या कहता है? नॉट बीइंग वेल मैरिड, इट विल बी अ गुड एक्सक्यूज फॉर मी हियरआफ्टर टू लीव माय वाइफ. He says it is a good thing that I won't be called well married. Then it will be easy for me to leave my wife whenever I wish to. टचस्टोन कहता है असाइड में अपना मुंह एक तरफ करके मुख्य पात्रों से अपनी बात को छुपाते हुए वो ये कहता है कि बहुत अच्छी तरह से विवाह के संपन्न नहीं होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। और वो फायदा क्या है कि मैं जब चाहूं तब अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं। इस बात की आड़ देकर के ये शादी तो कभी ढंग से हुई ही नहीं थी, तो इस शादी की कोई वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, तो ऐसी शादी को तो हम मानते ही नहीं हैं, इसलिए हम इस पत्नी को छोड़ रहे हैं। ऐसा वो कहता है कि ये एक विकल्प मेरे सामने खुला रहेगा अगर ये अयोग्य पादरी हो और मैं इसके नाम का हवाला देकर के कभी भी अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला करूं तो कर सकता हूं। Still he decides to find a proper person to marry him and Audrey. अब ये बात उसने क्यों कही टचस्टोन ने? In the times of Shakespeare, disloyalty between the husband and wife or the relationships was very much in vogue. ये यहाँ पर नाटक में ये वाला जो एक एंगल जोड़ा गया है वो इसलिए जोड़ा गया है कि उस समय पर
पति और पत्नी के संबंध के बीच में या प्रेमी और प्रेमिका के संबंध में वफादारी, निष्ठा कम हुआ करती थी और कभी भी कोई किसी से बेवफाई कर जाता था, कभी भी कोई किसी का विश्वास तोड़कर चल देता था। तो उसी चीज को यहां पर दर्शाने के लिए शेक्सपियर ने ये बात कही है कि ये महिला कभी भी मेरे साथ धोखा करे तो इसको छोड़ना मेरे लिए आसान होगा अगर पादरी अच्छा ना हो तो। He still decides to find a proper person to marry him, and Audrey, he dramatically goes off with Audrey. So here, then Touchstone says, okay, if we have to find a different person, a better person, then it's okay, I'll find a better person, and he dramatically goes off with Audrey. He catches hold of Audrey and leaves the stage. तो यहाँ पर नाटकीय अंदाज में टचस्टोन कहता है कि ठीक है, अगर इससे अच्छा पादरी भी हमें ढूंढना है तो हम ढूंढ लेंगे, और ऐसा कहते हुए वो ऑड्रे का हाथ पकड़ता है और नाटकीय अंदाज में वहां से चल देता है। Jacques begins to sing merrily. Now throughout the play we have seen the character of Jacques. He is all through found singing merrily. जेकस को हमने पूरे नाटक में गाना गाते हुए और हर्षोल्लास की स्थिति में ही देखा है। वो यहाँ पर फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। Oliver Martes has never seen such behavior before, so he is pretty amused by the statement of Touchstone. Now, Oliver had never imagined that I have been called to perform a marriage ceremony, and then first they invite me, and then they say I am not the right person and they leave me alone and get away. So this is quite amusing. And from the drama point of view, this is quite entertaining for the audience. ओलिवर ये देखता है कि मुझे इन्होंने शादी संपन्न करने के लिए बुलाया है और फिर आराम से मुझे थोड़ा सा उस काम के लिए अयोग्य मानते हुए दोनों मुझे छोड़ करके चल दिए हैं। तो ये जो नाटक के अंदर एक ट्विस्ट आया है या पात्रों का इस तरह का बर्ताव एक दूसरे के प्रति हो रहा है, ये नाटकीयता की दृष्टि से और दर्शकों को के लिए मनोरंजन की दृष्टि से बहुत अच्छा एक पुट शेक्सपियर ने यहाँ पर पैदा किया है। So he is pretty amused by the statement of Touchstone. All characters move away, leaving Vicar Oliver alone on the stage. And all the characters, they leave the stage. And the Vicar Oliver, he stands alone. Let us see the explanatory notes to understand this part of the video. यहाँ पर इस वीडियो में नाटक का जो हिस्सा है इसको समझने के लिए कुछ मुख्य शब्द और वाक्यांश देखते हैं। पोएटिक, कनेक्टेड विद पोएट्स और लाइक अ पोएम, कवि विषयक या कविता के सदृश्य या काव्योचित। फिलोसॉफिकल, ऑफ और कंसर्निंग फिलोसफी, दर्शन विषयक, staying calm and not getting upset or worried about something bad that happens. अशुभ घटने पर भी शांत चित्त और स्थिर मति रहना. This is the character of Touchstone. He is not mentally perturbed. ये जो गुण बताया गया है, ये टचस्टोन में दिखाया गया है, वो बहुत जल्दी से परेशान भी नहीं होता, उत्तेजित भी नहीं होता, उसे कोई बहुत ज्यादा किसी बात से फर्क भी नहीं पड़ता है. आदि direct and uninhibited, especially about sexual subjects or bodily functions. दुनियादार, Adi has been used for Audrey. She is a very down-to-earth lady and she can speak about anything outrightly. ये Adi word या Adi adjective ये ऑड्रे के लिए यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल यथार्थ की बातें करती है, ज्यादा लाग लपेट नहीं जानती है, ज्यादा काव्यात्मकता नहीं जानती है, सीधी सपाट बात करती है और उसे बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है किसी ऐसे विषय पर बात करने में जो विषय सामान्य तौर पर लोग खुल करके नहीं करते हैं. कोर्ट, to try to gain somebody's support by paying special attention to him or her. किसी पर विशेष ध्यान देकर या खुशामद कर उसका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करना.
So here Touchstone is seen courting Audrey. यहां पर कोर्टिंग जो वर्ड यूज किया गया है वो टचस्टोन ऑड्रे को कोट करता है, उसके लिए यूज किया गया है. डल विटेड, स्लो टू अंडरस्टैंड, स्टूपिड, अ पर्सन हैविंग अ लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट. मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि युक्त. ये डल विटेड यूज हुआ है ऑड्रे के लिए. कंट्रीलेस, a girl or young woman belonging to the rustic background. ग्रामीण परिवेश की लड़की या युवती. विकार, a priest of the Church of England. A vicar looks after a church and the people in the surrounding area or parish. इंग्लैंड के चर्च में पादरी जो चर्च और साथ लगे क्षेत्र के निवासियों का ध्यान रखता है. हियर द विकार इज ओलिवर मार्टेक्स्ट. यहां पर विकार है ओलिवर मार्टेस्ट. अम्यूज, टू मेक समबडी लाफ और स्माइल, टू सीम फनी टू समबडी. किसी को हंसाना, किसी बात का मजेदार लगना. टू मेक टाइम पास प्लेजेंटली फॉर समबडी, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम गेटिंग बोर्ड. किसी का जी बहलाना अथवा मनोरंजन करना. इनकॉन्ग्रुअस, स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, नॉट suitable in a particular situation, a pair or combination that is not compatible. विसंगत, बेमेल, अनुपयुक्त, ऐसा जोड़ा या जनसमूह जो आपस में सामंजस्य न रखते हों. Here the word incongruous has been used for the couple Touchstone and Audrey. ये जो शब्द है incongruous, जिसका अर्थ है बेमेल या आपस में अनुपयुक्त, ये टचस्टोन और ऑड्रे की जोड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है. मिसमैच, अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स और पीपल दैट डू नॉट गो वेल टुगेदर और आर नॉट suitable फॉर ईच अदर. अनुपयुक्त, बेमेल. यहां पर मिसमैच भी टचस्टोन और ऑड्रे की जोड़ी के लिए यूज किया गया है. कंफ्यूज्ड, नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, स्पष्ट रूप से सोच विचार करने में असमर्थ, चकराया या उलझा हुआ या भ्रमित. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दुर्बोध, उलझाव भरा, अस्पष्ट. डिस्कवर, टू फाइंड और लर्न समथिंग that nobody had found or knew before. किसी नई बात का पता लगना या उससे जानना. To find or learn something without expecting to, or that somebody does not want you to find. किसी अज्ञात बात या वस्तु को अप्रत्याशित रूप से खोज निकालना या उसे जान लेना. Bride, a woman on or just before her wedding day. वधू, दुल्हन, जिस युवती का विवाह हो रहा हो. Recommend, to say that somebody or something is good and that somebody should try or use him or her or it. किसी की, किसी से किसी काम के लिए सिफारिश करना अथवा अनुशंसा करना. टू टेल समबडी what you strongly believe he or she should do. किसी को किसी विशेष काम करने की सलाह देना. Priest, a person who performs religious ceremonies in some religions. पुरोहित, पुजारी, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति
अथवा पंडित. Wainscot, an area of wooden paneling on the lower part of the walls of a room. अंदरूनी दीवार की निचली पट्टिका काष्ठास्तरण. Improper, not suitable for the situation. स्थिति के अनुपयुक्त. Illegal or dishonest, गैर कानूनी या झूठा. Inaccurate, not correct or accurate with mistakes, जो सही या वास्तविक या यथार्थ न हो, त्रुटियुक्त. Beneficial, having a good or useful effect, लाभकारी, हितकर या फायदेमंद. Aside, words spoken by an actor to the audience which the other characters on the stage are not intended to hear. नाटक में कलाकार द्वारा दर्शकों को बोले गए शब्द जिन्हें रंगमंच पर अन्य कलाकारों को नहीं सुनना होता. स्वगत, a remark made in a low voice that is intended to be heard only by certain people. दबी आवाज में बोले गए शब्द जो केवल कुछ लोगों के सुनने के लिए ही हों. Excuse, a reason that may or may not be true that you give in order to explain your behavior. अपने आचरण के समर्थन में दिया गया तर्क, सफाई या बहाना. To forgive somebody for something he or she has done wrong that is not very serious. छोटी मोटी गलती माफ करना. To explain somebody's bad behavior and make it seem less bad. अशिष्ट आचरण की सफाई देना, आचरण की अशिष्टता को कम करके बताना. Dramatic, noticeable or sudden and often surprising. अकस्मात होने वाली और प्राय आश्चर्यकारी बात. नाटकीय, एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव, उत्तेजक या असरदार. मेरी, हैप्पी, अ स्टेट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. आनंदित, प्रमुदित, हर्षोल्लास की स्थिति. Amuse, to make somebody laugh or smile, to seem funny to somebody. किसी को हंसाना, किसी बात का मजेदार लगना. To make time pass pleasantly for somebody, to stop somebody from getting bored. किसी का जी बहलाना, मनोरंजन करना. Statement, something that you say or write, especially formally. कथन, प्रकथन, वक्तव्य कि कही या लिखी कोई बात विशेषतः औपचारिक रूप से. Here we see that the statement of touchstone for the vicar, Sir Oliver Martext, is a matter of concern for the vicar. यहां पर स्टेटमेंट को हमने देखा है कि सर ओलिवर मार्टेक्स्ट को शादी संपन्न करने के लिए बुला करके उसके बाद टचस्टोन ने जो वक्तव्य दिया
जो कथन कहा वो बड़ा ही विचित्र है और उसी के को देख करके विकार को आश्चर्य होता है, असमंजस होता है कि यहां ये सब क्या हो रहा है। दिस वॉज एक्ट 3 scene 3 part A. In the next video we shall see the following part of the story of the drama. अभी यहां पर इस वीडियो में हमने एक्ट 3 सीन 3 का पहला भाग देखा, जिसको हमने पार्ट ए कहा है। अभी इसके आगे की नाटक की कहानी को हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। नाटक अभी आगे और जारी है, इसलिए इसके बाद की वीडियो में आगे की कहानी देखने को मिलेगी। काइंडली सी द फॉलोइंग वीडियो। कृपया इसके बाद की वीडियो अवश्य देखें। थैंक यू, धन्यवाद।